हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ललित एंड हम आज बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रिवीजन, बायोटेक एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एवरीथिंग हम इसी में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट व्हाट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स। लेट्स डेफिनेशन: बायोटेक्नोलॉजी implies the use of living organism, cells and biological system to develop products and process useful to humans. और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लस बायोप्रोसेसिंग। डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दो अब हमारे पास मेन गोल्स हैं। द फर्स्ट इज़ टू मॉडिफाई डीएनए एंड क्रिएट रिकम्बिनेंट डीएनए। राइट, हम डीएनए को मॉडिफाई करेंगे और उसमें चेंजेस ला के हम उसको क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। एंड सेकेंड इज़ टू यूज इंजीनियर्ड सेल्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। हम उन्हीं सेल्स में कुछ इंजीनियरिंग करके कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कोर आइडिया इज दैट द बायोटेक्नोलॉजी बिकम्स पावरफुल व्हेन वी कैन कट, join and ligase DNA and transfer it so that it can express inside a host cell. Okay, basic things. Let's now jump to the second topic. What are the tools and enzyme we can use in biotechnology? These are the restriction enzyme first, second is DNA ligase, third is DNA polymerase and reverse transcriptase, right, and alkaline phosphate and other essential. Let's talk one by one. Okay, what is restriction enzyme? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेज। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, कट द डीएनए एट इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। मतलब ये डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट करता है। ठीक है, और वो स्पेसिफिक जगह जो होती है यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। और ये क्या करता है, एक स्टिकी एंड्स क्रिएट करता है और ब्लंट एंड। ठीक है, मोस्टली स्टिकी एंड ही होता है, स्टिकी एंड ही अपने काम में आने वाला है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, ज्वाइन करना, मीन्स इट्स जॉइंस द डीएनए फ्रेगमेंट बाय फॉर्मिंग फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वर्क लाइक मोलिकुलर ग्लू। डायरेक्ट सवाल आता है मोलिकुलर ग्लू किसको बोलते हैं, और दीज आर द 4-5 ऑप्शंस होते हैं। तो मोलिकुलर ग्लू इज डीएनए लाइगेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज किस में काम आता है, सबसे फर्स्ट थिंग इन रेप्लिकेशन एंड सेकेंड इज पीसीआर। ठीक है, ये सवाल डायरेक्ट आता है। टेक पॉलीमरेज इज हीट स्टेबल एंड यूज्ड इन पीसीआर। राइट, जो चीज़ें यहाँ पे सारी याद रखनी है। राइट, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स एज ए नेम इंडिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन means makes DNA from RNA template, that is reverse, and are important for cDNA synthesis also. Now what is the use of alkaline phosphatase? Alkaline phosphate क्या करता है, remove phosphate from vector ends to prevent self ligation, ताकि self खुद ही ligate ना हो। ठीक है, now these are the other essential things we have to remember. The first is ligases, nucleases, methylases, topoisomerase, cloning vectors and competent host cells. Okay, now the neat memory line you have to remember. Now the important things you have to remember is restriction endonuclease enzyme. What is the role of this? The restriction endonuclease enzyme cut, ligase, join, polymerase copy and vector to carry and insert into the host. This is the line you have to remember directly from NCERT. Okay, now let's move to the third topic, steps in recombinant. So steps in recombinant DNA technology. Stepwise a process. The first thing is isolation of genetic material, that is DNA. Then second, the first thing to isolate DNA. Second is to cut DNA at a specific site using restriction enzyme. Okay. Third, amplifying the gene of interest if required. Now we have cut these things, gene. Now we have to amplify this to make copies of it. Okay. Fourth is joining DNA fragment with vector using ligase. Now ligase play a role here to joining. Okay, now fifth is to transfer into competent host cell. We can say transfer it into host. Now selection of recombinants and then expression and downstream processing. Now these are the 7 steps you have to remember for recombinant DNA technology. Now important conditions: DNA must be purified and handled carefully. First thing, host cell must accept foreign DNA and selectable marker is needed to identify transformed cell. Okay, must remember things, recombinant DNA technology not just making the construct. The real challenge is selection, expression and product recovery. These are the 3 real challenges you have to remember. Now let's jump into our next topic, that is vector and host cell.
Now what is vector? As we all know, vector is a DNA molecule that carries the desired gene into the host cells. Means it's play a role in transfer of DNA molecule to the host cell, right? Okay. Now, एक good vector क्या होता है? Now, what is the qualities in a good vector? The first thing, origin of replication होना चाहिए, selectable marker, cloning site, and ideally high copy number. Okay, these are the qualities in a good vector. Common vectors we are using are plasmid, bacteriophages, cosmids and artificial chromosomes such as BAC and YAC. ये नीट में सवाल आता है. Okay. Now, these are the vectors and what can be asked in NEET. Now, first is ORI. ORI is a starts replication of vector in host. We can set the starting site. Okay. More ORI activity means more copies. Simple. Selectable marker identifies transformed cell, commonly antibiotic resistant gene. Okay. Cloning site where gene is inserted. Simple. Okay. Need point unique restriction site is preferred. Now promoter is a start transcription need for gene expression. Simple. Now PBR 322 is a classic plasmid vector. This is most important line you have to remember. Now what are the important techniques you have to study? The first is PCR. Okay, PCR stands for polymerase chain reaction. It amplifies DNA in vitro. Now, PCR requires template DNA, primer, DNTPs, buffer and tag polymerase. There are 3 steps for PCR, that is DAI. The trick it helps you to remember. Now there are 3 steps. D stands for denaturation, then annealing, then extension. Direct question can be asked. Second is gel electrophoresis. Gel electrophoresis separates DNA fragments based on their size. DNA move towards NR due to negative charge. Okay, smaller fragments move faster. Basic things, common sense. Now what is blotting and probes? ओके यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि साउथर्न ब्लॉट इज़ यूज फॉर डीएनए एसडी, साउथर्न ब्लॉट फॉर डीएनए, नॉर्थर्न ब्लॉट फॉर आरएनए एनआर, वेस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. नाउ प्रोब लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड यूज फॉर डिटेक्शन. सो यहाँ से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता ही है, यू हैव टू रिमेंबर. एक तरीका से याद रख सकते हैं एस डी कार्ड होता है. फर्स्ट इज, सेकेंड इज एनआर. Okay, and third is WP. I don't know what make a sense, but you can. Okay, now transformation. What is transformation? Introduction of recombinant DNA into host cell. Competent cell scans, okay, and can take up DNA more easily. Okay, competent cells can take up DNA more easily. Simple line you have to remember. Now selection method. The first is antibiotic resistance marker, blue-white screening, reported GNA such as LAC-G, NCRT things. Okay, now cloning host. What are the hosts we can use? So cloning host, E. coli is most commonly used. E. coli we can use most commonly. इसके अलावा yeast and plant can also be used in certain system. Okay, so important things that in PCR denaturation separate strands. एनिलिन बाइंड्स प्राइमर एंड एक्सटेंशन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम द प्राइमर एंड. इसका मतलब ये है तो पीसीआर में हमारे पास 3 चीज़ होती है. द फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनिलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन. तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसको सेपरेट किया जाता है. ओके, एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर बाइंड हो जाता है, राइट. एंड एक्सटेंशन क्या करता है, दैट इज़ डीएनए सिंथेसाइज करता है. ठीक है, सिंपल चीज़. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट इन मेडिसिन. मेडिसिन में क्या एप्लीकेशंस है. द फर्स्ट इज रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन. We can make recombinant human insulin. Insulin is produced by recombinant DNA method. Human insulin is made using microbial system and useful because it avoids animal derived impurities and immune issue and tissue whatever. Okay, तो 3 चीज़ है कि इंसुलिन क्या कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए मेथड से बनाते हैं, माइक्रोबियल सिस्टम यूज होता है, इसके अलावा एनिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. सिंपल. Now what is gene therapy? Gene therapy is used to correct a genetic defect by introducing functional DNA. Okay, example often asked is ADA deficiency. ADA deficiency is example of
जीन थेरेपी क्वेश्चन, ओके, कैन बी एक्स वीवो और इन वीवो डिपेंडिंग ऑन द मेथड, राइट। तो जीन थेरेपी किस में काम आता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो मान लो किसी चिल्ड्रन या किसी बच्चे में, तो फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज वैक्सीन्स, रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स कैन बी सेफर एंड स्पेसिफिक, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज ए कॉमन बायोटेक एग्जाम्पल, यू कैन रिमेंबर, ओके। इसके अलावा मोलिकुलर डायग्नोसिस में यूज़ होता है, दैट इज़ PCR, अलाइजा एंड द ब्लोटिंग टेक्निक, ओके। नाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस एंड थेरेपी में। इसके अलावा हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट वन एंटीजन, राइट, हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट वन एंटीजन। तो ये चीज़ हमने बात करी कि हम क्या क्या एप्लीकेशन इनका यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन में। तो सबसे पहले रिकमेंडेड ह्यूमन इंसुलिन बना सकते हैं, जीन थेरेपी, वी कैन गिव मेक वैक्सीन्स एंड फॉर मोलिकुलर डायग्नोसिस, एंड फिफ्थ इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, राइट, ओके। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन मेकिंग सेफर मेडिसिन, फास्टर डायग्नोसिस एंड टारगेटेड थेरेपी। एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज़ एंड क्या एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ओके। यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट इज BT crops, BT crops, first things Bacillus thuringiensis provides crygenes, first things direct NCERT questions, remember cry proteins are insecticidals, right, they can kill insects, gene is expressed in plant to protect against specific pest, तो हम BT crops भी बना सकते हैं, राइट। सेकेंड इज बेनिफिट्स ऑफ GM crops, GM क्रॉप्स जो होती है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है, इसके अलावा हर्बिसाइड टॉलरेंस होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी इंप्रूव्ड होती है, और इसके अलावा स्ट्रेस टॉलरेंस एंड लॉन्गर सेल्फ लाइफ, तो ये भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड थिंग्स फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है डिलेड राइपनिंग का, ठीक है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है नीट में एज ए GM फूड एग्जाम्पल, राइट। तो GM फूड एग्जाम्पल इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसके अलावा फोर्थ थिंग RNA इंटरफेरेंस, हम यूज्ड फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस बाय साइलेंसिंग टारगेट जीन्स, ठीक है, कैन रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल जीन्स। फिफ्थ इज बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी बढ़ाना, राइट, तो इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, सच एज इसमें प्रोटीन्स ऐड करना और भी न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, राइट, क्वालिटी बढ़ जाती है कम से ज़्यादा, ओके। Now it is important for public health and food security, okay, okay. One important line you have to must remember, that is BT toxin is produced as inactive prototoxins, right, produce होता है inactive prototoxins but becomes active in the insect gut environment, right, okay. Now industrial biotechnology, इंडस्ट्री में हम क्या यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, राइट। द फर्स्ट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, microbes can be used to produce enzyme, antibiotics, vitamin, organic acids and fermented products, and fermentation is carried out in bioreactors, simple, okay. Bioreactor essentials provides optimum conditions for growth and product formation, important control जो कि बायोरिएक्टर में होता है कि उसका टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, दैट इज़ pH, एरिएशंस मीन्स ऑक्सीजन एंड जो भी एरिएशन, इसके अलावा स्टीयरिंग एंड द फोम कंट्रोल, ओके, ओके। नाउ प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ये तीन क्या चीज़ें हमें याद रखना है। द फर्स्ट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, ओके, ग्रोथ फेज के ड्यूरिंग जो प्रोड्यूस होता है दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोथ फेज, राइट, आफ्टर ग्रोथ फेज। एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टेप्स आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद का। तो थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट, इससे क्या समझ आता है, ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, राइट, ओके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड एंटीबायोटिक्स एंड मनी पिगमेंट्स। एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग प्योरिफिकेशन इज क्रिटिकल फॉर यूजेबल प्रोडक्ट्स, इसमें क्या प्योरिफिकेशन जरूरी है, right. Now what is biosafety, ethics and IPR? Biosafety means concerned potential harm from GM organism, कि GM organism से क्या पोटेंशियल हार्म हो सकता है उसके बारे में कंसर्न, राइट। इसके अलावा इंक्लूड एनवायरमेंटल और हेल्थ सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है,
ठीक है. द फर्स्ट इज बायोसेफ्टी, सेकेंड इज एथिक्स. एथिक्स इज क्वेश्चन अबाउट परमिशन, यूज़ एंड फेयरनेस. क्या जो हम यूज़ कर रहे हैं या वो सही है, परमिशन है, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर. ओके. इंपॉर्टेंट इन जीन मैनिपुलेशन एंड पेटेंटिंग, राइट. किसी प्रोडक्ट्स का अगर हम पेटेंट करवाते हैं तो कोई मिस यूज़ तो नहीं है, दीज आर द थिंग्स. और जीन मैनिपुलेशन के ऊपर भी, ठीक है. IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट इन्वेंशंस, राइट. इट इंक्लूड्स पेटेंट रिलेटेड कंसेप्ट, राइट. किसी का पेटेंट चोरी करना किसी चीज़ के लिए, दीज आर द थिंग्स. ओके. व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन. ओके. सो इसमें ये चीज़ है कि हर जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली हार्मफुल नहीं होता. वी कैन से नॉट एवरी जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल एंड नॉट एवरी बायोटेक प्रोडक्ट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, राइट. सो रीड क्वेश्चंस केयरफुली. नाउ रैपिड रिवीजन, व्हाट वी हैव स्टडीज स्टिल फेयर. इसका एक रिवीजन और लेते हैं. हमने जो पढ़ा, क्लोन क्या होता है, आइडेंटिफाई कॉपीज फ्रॉम DNA, रिकम्बिनेंट DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, वेक्टर, कैरियर DNA, होस्ट जिसमें हम एक्सप्रेस करने वाले DNA, सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, कंपिटेंट सेल जिसमें DNA को टेकअप करना है, प्रोब इज ए लेबल्ड न्यूक्लियाई एसिड फॉर डिटेक्शन, cDNA मेड फ्रॉम mRNA, ट्रांसजीन इज ए फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस एंड बायोरिएक्टर इज ए प्रोडक्शन वेसल्स. सिंपल. ओके. इसके अलावा जो सीक्वेंस हमें याद रखनी है, द फर्स्ट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना, हमें उसको कट करना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, देन लाइगेट विद वेक्टर, देन ट्रांसफॉर्म टू होस्ट, then select recombinants, express products and purify products. Simple. Remember this sequence. Okay, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं डायरेक्ट. ओके. ओके. इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली हम ट्रैप्स की बात करते हैं नीट में जो पूछ सकते हैं इसके अलावा. ओके. एंड वन लाइन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहले स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस बाय सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नॉट ऑल. स्टिकी एंड्स जो है सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते, नॉट ऑल, कुछ कुछ करते हैं. फर्स्ट थिंग, PCR एक इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन है, नॉट इनसाइड द बॉडी, ठीक है. थर्ड इज साउथर्न ब्लॉट इज फॉर DNA, नॉट फॉर प्रोटीन. एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. वेस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन, नॉट DNA. एंड BT टॉक्सिन्स वर्क इन इनसाइड गट, नॉट द प्लांट सेल इटसेल्फ. हमने बात करी थी BT टॉक्सिन ऐसे इनएक्टिव होता है, इंसेक्ट की गट में जाके एक्टिवेट होता है, राइट. तो ये चीज़ भी याद रखनी है. इसके अलावा जीन थेरेपी ट्रीट्स डिजीज बाय एडिंग फंक्शनल जीन, नोट बाय सिंपल सिम्टम रिलीफ. ओके. इसके अलावा हम एग्जांपल की बात करें तो ADA डिफिशियंसी, BT कॉटन, फ्लेवर सेवर टोमेटो, रिकम्बिनेंट इंसुलिन, PBR 322 एंड टेक पॉलीमरेज. दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर. ओके. ओके. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब एंड ओके, like this video.